Good morning, student. I am Rajendra Simuri, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mova. Again, all of you, welcome in this online session. And today we discussed about the some conversion, whatever we discussed into the earlier lecture. In the previous lecture, we just take it out some conversions of the all the meters, kilo, and everything that we discussed into the earlier. But again, that is just kind of the some revision part. Now we are going today, that is the concept time 4, that is your supplementary book number 6. And in this book we have using here the conversion of rational numbers from the decimal form to standard form. So how to convert it for the terminating and non-terminating, that we already studied into the previous lecture. So just before going on that concepts, you have to open your supplementary book. This is your concept time 4, and these all things we just be put into the part of conversion of the rational numbers from decimal form to its standard form. तो कैसे डेसिमल फॉर्म में से स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है. So just we have to take it out one by one, and all the portions is displayed over here. So let us move on it. Just conversion of rational numbers from decimal form to standard form. In this section already we convert a rational number to its decimal number. It can be of two kinds, terminating and non-terminating, that we already studied. एंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक रिकरिंग मतलब रिपीटिंग पोर्शन हमने सीखा था. सो नाउ वी विल नाउ लर्न हाउ टू कन्वर्ट रेशनल नंबर फ्रॉम द डेसिमल नंबर टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. हमको पता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. So first one, for the terminating decimal numbers, we can directly change the decimal number to a fraction. Suppose here given the example number 10 is 17.821. So 17.821 मतलब decimal के बाद 3 digits है, तो we directly put into the fractional part, that is 3 zeros of 1. So we have to directly put 17.821. Instead of it, we directly convert into the decimal number into the फ्रैक्शन में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट होती है उतने जीरोज हम 1 के साथ मेंशन कर देते हैं, तो डायरेक्टली उसका कन्वर्जन हो जाता है. तो 17,821 डिवाइड बाय 1000, that is divided by a power of 10, has as many zeros as the decimal digits. That is for the terminating. जो डिजिट टर्मिनेटिंग होती है उसमें तो हम ऐसा कर सकते हैं, बट दोज हु आर नॉन टर्मिनेटिंग and non-terminating, recurring or repeating, that time what to do for conversion from decimal numbers to its standard form. So to change a decimal number to a standard form, we use the power of 10, so that the recurring part of the decimal number cancelled out into the calculation. So the steps given below will help us understand this particular things understands. How can we use this all the steps? We have using the two particular examples here. In the example number 1, that is given y is equal to 2858585. That's that way because it's a one kind of non-terminating recurring. 858585, that is a repeating. Similar way, first we solved out the example now 11 here. Inside 11, first portion that we have to use the first step. पहले स्टेप में हमें क्या करना है, इक्वेट अ वेरिएबल टू द गिवन डेसिमल नंबर. मतलब हमें कोई एक वेरिएबल से उसको डिफाइन कर देना है कि आपको दिया गया इक्वेशन में 2.85858585.
सो वी जस्ट यूज y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू या z इज इक्वल टू, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो। सो y इज इक्वल टू आपने ले लिया 2.8585, तो आप अपनी बुक में पहला स्टेप लिखेंगे y इज इक्वल टू 2.858585, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ पावर ऑफ 10। अब आप देखना है कि यहाँ पे जो आपका नंबर है वो अच्छी तरह से देख लो क्या करते हैं हम एक्चुअल में, दैट इज वेरी इजी स्टेप। y इज इक्वल टू 2858585, आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आपको डिस्प्ले हो रही है वो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट्स। सो सिंस 2 डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड हियर, सो वी मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय 100। मतलब यदि 2 डिजिट रिपीट होती है तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना है। यदि एक ही डिजिट रिपीट होती है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 3 डिजिट यदि रिपीट होती है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये स्टेप सेकंड वन है, वो पावर ऑफ 10 का आपको यूज करना है। मतलब यहाँ पे आपको डिजिट है वो 2 डिजिट रिपीट हो रही है, सो दैट्स वाई वी मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय 100। तो आपको क्या करना है, बोथ साइड मतलब वेरिएबल की साइड भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी साइड यानी कि 2.858585 है वहाँ पे भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2.8585 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मतलब 2 से पॉइंट कहाँ पे मूव हो जाएगा, लाइक दैट वे 2.8585 है। अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पॉइंट और मूव हो जाएगा, और आपका पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 285.858585, सो समझ में आ गया? तो दिस इज अ 2। यदि 1 ही मूव होता तो डेसिमल एक पोजीशन पे मूव होता है, वो हमने आगे कन्वर्जन में देख लिया है। तो अभी दोनों साइड पे हम 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो दोनों साइड हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में क्या है, आप अपनी साइमल्टेनियसली ऑल्सो यू कैन सी फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री बुक, जहाँ से भी आप देख सकते हो। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन। मतलब ये हमारा हो गया था इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा आफ्टर मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड्स वी हैव कलेक्ट हियर द इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन आ गए, तो हमें क्या करना है, दूसरे इक्वेशन में से मतलब इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो 100y इज इक्वल टू 285.858585 डॉट डॉट डॉट। इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। सो माइनस y इज इक्वल टू 2.85, जहाँ पे डेसिमल है वो उसी तरह से ही हम डिजिट रखेंगे। जैसे ही इस टाइप का स्टेप्स हमने रख दिया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब बचता क्या है, अब लास्ट से स्टार्ट कर, तो 100y में से y गया मतलब 99y हुआ। अब आप देख सकते हैं कि पीछे तो सभी जगह पे 858585 है, तो हम जीरो रखते जाएंगे अप टू द पॉइंट हम जीरो रख देंगे। फिर डेसिमल पॉइंट का टर्न आता है यहाँ पे। अब डेसिमल का पॉइंट आया मतलब 5 में से 2 गया 3, 8 एज इट इज, 2 एज इट इज, सो 283.000, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपका रहेगा 99y, क्योंकि 100y में से y गया तो कितना बचता है, 90y। अब थर्ड स्टेप भी माइंड में समझ में आ गया, सिर्फ हमें इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। इज इट क्लियर? Now fourth step is that solve the equation to find the value of the variable. So अभी हमारे पास बचा 99y is equal to 283। सो ऑब्वियसली 99 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में है, तो 283 के सामने साइड पे मूव होगा, तो राइट हैंड साइड में डिवीजन होगा उसका। 283 डिवाइड विथ 99। अब y is equal to 28399, it is in the form of p by q। अब p by q के फॉर्म में आ गया, मतलब हमारा
डेसिमल नंबर का कन्वर्जन हो गया इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन हो गया है। सो दैट इज द आंसर ऑफ इट। समझ में आ गया? तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर वे वी आर यूजिंग द एग्जांपल नंबर 12। अब देख सकते हो वहाँ पे भी कि दिस इज 3.1009009, then so on. So this is the equation number 1. Now z is equal to, we have to take, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, पहले आपको इक्वेट करना है, उसको वेरिएबल के साथ इक्वल बनाना है। तो वो हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सिंस 3 डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड, आप देख सकते हो कि 3 डिजिट ऐसी है कि जो रिपीट हो रही है, 100 900 900 ऐसे आगे चलता रहेगा। सो सिंस 3 डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड वी मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय 1000। मैंने पहले ही बता दिया, 3 डिजिट हो तो 1000 से, 2 डिजिट हो तो 100 से, 1 डिजिट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड को। तो उसी तरह हमने दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 z इज इक्वल टू, ये डेसिमल पॉइंट है 3.100, तो ये डेसिमल पॉइंट 3 राइट साइड के ऊपर मूव होगा। ये डेसिमल कहाँ पे जाएगा? 1 2 एंड 3, मतलब हमारा 3100 के बाद यहाँ पे डेसिमल आएगा, क्योंकि 1000 है तो 3 साइड वो मूव होगा। इज इट क्लियर? तो 100,000 z इज इक्वल टू 1000 z इज इक्वल टू 3100 पॉइंट, फिर बाकी की चीज़ आप ऐसे ही रख देंगे 900 900 900 सो वन। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलर वे जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया वैसे ही आपको करना है। 100z इज इक्वल टू 3100.9009009, ऐसे ही आपको रखना है जैसे आपको इक्वेशन नंबर 2 में मेंशन किया, उसमें से पहला इक्वेशन आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 3। जो भी चीज़ आपकी बचती है यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप सब्ट्रैक्शन करना, तो 9 में से 9 गया 0 0 0 0 0, फिर पॉइंट के पहले 9 में से 1 गया मतलब 8, फिर आपके पास 0 में से 3 नहीं जाएगा, सो वी हैव टू टेक द 10 सब्ट्रैक्ट 3, दैट्स वाई 7। अब यहाँ पे बचता है 9, सो वी हैव टू यूज 9। ये सिंपल सब्ट्रैक्शन ही करना है, वो आपको पता है। फिर 9 आ गया तो यहाँ पे 1 नहीं बचेगा, वहाँ पे उससे कम वाली डिजिट यानी 0 एंड 3। 1000 z में से z गया मतलब 999 z। तो सिमिलर वे ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया। फिर स्टेप नंबर 4 में इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 999z इज इक्वल टू 3097.8। पीछे वाले जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हो कि पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के पास बाद एक डिजिट है तो हम 10 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो ये 999 है वो मल्टीप्लिकेशन में सामने आएगा तो डिवीजन में आएगा, तो 999 इंटू 10, दैट्स वाई 9990। So these are the way to represent all the decimal numbers into the particular fraction numbers, or it's into the standard form. तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। अब उसके ऊपर से आप ये चीज कर सकते हो, बट लेट अस मूव ऑन टू द ब्रीफ व्यू इनसाइड दैट। जस्ट चेक इट आउट। So how to converting recurring decimal to their standard form? Just we have to use how to convert this all the recurring यानी repeating decimal को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता है। अभी मैंने आपको सप्लीमेंट्री बुक के जो पेज में दिया गया है दोनों एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए, उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, बट नाउ it becomes into the step wise. Just we have to take it. First one, we have to convert 0.888 to its standard form। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे हम करेंगे? स्टेप वाइज। जस्ट वी हैव टू टेक इट आउट। अभी हमने स्टेप्स तो कंप्लीट कर दिए, बट जस्ट अगेन वी रिपीट इट।
पहले हमें क्या करना है, पहले स्टेप में इक्वेट ए वेरिएबल टू द गिवन डेसिमल नंबर, मतलब हमें पहले लिखना है कोई भी वेरिएबल के सामने ये वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है। तो अभी हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है, तो ऐसे डॉट 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 के साथ हम लिखेंगे 0.888 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका जरूरी नहीं है कि हम x, यदि हम x लिया उसके सामने वेरिएबल, तो हमारा 0.888 डॉट 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 हम उसको ऐसे भी मेंशन करते हैं 1, क्योंकि दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो पहला स्टेप तो सभी को पता चल जाता है। सेकंड स्टेप में हमें, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितनी डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 8 ही रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। तो हमें एक डिजिट हो रही है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। यदि वो दो डिजिट रिपीट होती है तो 100 से, और 3 डिजिट होती है तो 1000 से। तो यहाँ पे एक ही डिजिट हो रही है तो दोनों साइड पे हमें यूज करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई। सो 10y इज इक्वल टू, अब ये जो डेसिमल पॉइंट है वहां पे ही ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे दिक्कत आती है सभी स्टूडेंट्स को, तो याद रख लो कि अभी आपका ओरिजिनल इक्वेशन में 0.8 है, अब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ से डेसिमल मूव होके यहाँ आ जाएगा। तो आपका एक्चुअल में आंसर क्या बचेगा, 8.888 ऐसे आगे बढ़ेगा। समझ में आ गया, क्योंकि डेसिमल है वो मल्टीप्लाइड विथ 10 है, तो इसी नंबर को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 8.888 डॉट डॉट डॉट। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। थर्ड स्टेप में आपको सेकंड इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। सो पहला सेकंड इक्वेशन है वो 10y इज इक्वल टू 8.888 है, माइनस हम करेंगे y इज इक्वल टू 0.8888। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो 8808808808 में से 0 गया तो 8, और 10y में से y गया मतलब 9y। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1। अब जो फोर्थ स्टेप है जिसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी, so 9y is equal to 8.00, so multiplying both the side by 10 helped us eliminate the decimal digit in the result. So we have to use 9y is equal to 8 हुआ, and y is equal to 8 by 9, so therefore 0.888 is equal to 8 by 9। तो ये हो गया आपका पहला कन्वर्जन। इसी तरह से आपको 4 स्टेप्स को सॉल्व करना है और अपनी बुक में ऐसे ही लिखना है, डिसेंटली लिखना है, जो जिसको सामने वाले को पता भी चल जाएगा हाउ टू कन्वर्ट दिस डेसिमल इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा और आपको कन्वर्जन है वो ऐसे करना होगा। समझ में आ गया? सो दैट इज द कन्वर्जन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ एक और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, कन्वर्ट 1.23666 टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। सो वी जस्ट चेक इट आउट कि यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है वही देखना है आपको। तो रिपीट जो हो रहा है वो कौन सी डिजिट है, 6 डिजिट है वो रिपीट हो रही है, आप देख सकते हो। बट कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 बार। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट इट टू द इक्वेशन, हमने रख दिया x और y इज इक्वल टू 1.23666। फिर इक्वेशन हमने लगा दिया कि आपकी रिपीटेशन जो है, मल्टीप्लाइंग इक्वेट ए वेरिएबल टू द गिवन डेसिमल। अब यहाँ पे आप रिपीटेशन आप देख सकते हो कि 1.23666 ऐसा कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाइंग द बोथ साइड बाय पावर ऑफ 10। क्यों यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा रिपीटेशन है वो थर्ड डिजिट से रिपीट हो रहा है। मतलब हम जब हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते तब हमें वही डिजिट को कंसिडर करना है। सो इन दैट वे वी हैव टू यूजिंग with multiplying with 10।
सीधा ही हमें रिपीट के बारे में पता नहीं चल रहा है तो डायरेक्टली वी आर यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो वो डिजिट मूव हो जाएगी 1 2 की तरह। तो सब्ट्रैक्शन में ये इजी रहेगा। तो ये हम रिपीटेशन के बारे में खास ध्यान रख लें। यदि आपको क्लियर कट दिख रहा है कि 8 डिजिट है, अभी हमने एक एग्जांपल देखा, तो उसमें 8 डिजिट ही ऐसी थी जो रिपीट हो रही। यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि 2 3 6 6 6 है तो पीछे 6 6 6 का मतलब नहीं है, बट आगे कौन सी चीज है, 2 3 है। तो रिपीट के बारे में हमें देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बाद तो हमें पता ही नहीं है कि 6 6 6 के बाद क्या है। तो हम ऑब्जर्व ही कर सकते हैं ना कि 2 डिजिट ही है, 2 3, बाद में तो 6 है जो रिपीट हो रही है, कंटिन्यूअसली रिकरिंग हो रही है। तो 2 3 है मतलब हमारे पास 2 डिजिट है। 2 डिजिट है ऑटोमेटिकली, दोनों अलग अलग है तो रिपीट में तो हम एक ही लेंगे ना, 2। तो बाद में जब आएगा तो वो 2 आएगा ना। तो हम एक ही डिजिट है, दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर द 10। समझ में आ गया ना। सो दोनों साइड कौन सी डिजिट से कंसीडर करना पड़ेगा, 10 से। बाकी स्टेप्स एज इट इज है जो आपको पता है। तो इस तरह से ये कन्वर्जन भी करेंगे। नेक्स्ट, अभी आज के होमवर्क में ये दोनों चीज आपको मैं दे रहा हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे के 2 एग्जाम्पल्स और बुक्स के 2 एग्जाम्पल्स और ये दोनों एग्जाम्पल्स, यानी टोटल 6 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करके आपको आज होमवर्क में सेंड करना है। समझ में आ गया? ऑल 6 एग्जाम्पल्स that we discussed in today's lecture that you have to send for the uh, practice purposes and that is your today's homework। तो ये चीज़ है वो आज होमवर्क में कंप्लीट करनी है। उसका मैं सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूँ कैसे करना है, बट टुडे यू हैव टू सॉल्व इट। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 2 3 2 3 2 3 2 ऐसे चल रहा है। तो मतलब हमें 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, हैंस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। 2 डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो रही है, देखो 2 6 2 के बाद 3 2 3 2 3 2 3 2 ऐसे। अब 3 2 3 2 का मतलब होता है 2 डिजिट। 2 डिजिट मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 से हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। फिर बाद में स्टेप्स आता है, थर्ड इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करो। ये हो जाने के बाद फाइनली वी हैव टू रीच टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू द इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आपको ये चारों 4 स्टेप हैं वो उसके ऊपर अप्लाई करना है। आप चाहे तो इस सॉल्यूशन का यूज कर सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि विदाउट शोइंग दिस यू हैव टू ट्राइड योर सेल्फ इन योर बुक एंड देन यू हैव टू शो मी एज एन होमवर्क। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो दैट इज नथिंग टू हार्ड इन साइड। ये सेकंड वन है 0.818181। तो यहाँ पे तो क्लियर कटली आपको दिख रहा है कि 8181 रिपीट हो रही है। तो 2 मतलब 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ इट्स इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हो गया आपका चारों चार। At last, we have to conclude that any rational number, be it terminating or non-terminating recurring, can be expressed in its standard form। हमें कोई भी रेशनल नंबर का आइदर इट इज इनटू द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो तो कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज अवर कंक्लूजन। दूसरी चीज, conversely, if a decimal can be expressed in its standard form, then it is a rational number। यदि वो डेसिमल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तभी हम कह सकते हैं कि इट्स वन काइंड ऑफ रेशनल नंबर। So that is this is the conclusion of it। Let us move on to the another point। So after all this concluding of this session, before I just give you to the today's homework। आज के होमवर्क में जो आगे मैंने 6 क्वेश्चन दिए वो भी है, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.1 का ए एंड 3.2 के सभी ऑप्शंस को आप
आज के होमवर्क में लिखेंगे। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.1 ए एंड 3.2 कैसे करना है, जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेर द इंटीजर्स एंड ऑल द क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तभी आपको बनाना है कि 285.965 को आप कंसीडर करो। पी बाई क्यू के फॉर्म में ही सीधा लिखना है, तो आप पहले 285.965 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट बिकम्स राइट वे, दैट इज द आंसर ऑफ इट ए। वैसे 3.2 में तीन चीज़ आपको बताई गई, 11.9, 0.888 एंड 0.1888। तीनों चीज़ में आपको वैल्यूज लगानी है। तो x की वैल्यू आप मान लो कि 11.9 है, तो 11.9 को 10 से मल्टीप्लाई करो तभी 119 होता है, क्योंकि पॉइंट्स निकालना जरूरी है, क्योंकि हमें सिर्फ p बाई क्यू के फॉर्म में ही लिखना है। तो वैसे ही 0.888 को कैसे कंसिडर करें डेसिमल फॉर्म में, और थर्ड वन 1.888 को कैसे हम कंसिडर करें। तो ये तीन चीज़ को बाद में आपको एडिशन करना होगा, क्योंकि ये तीनों एडिशंस में कंसिडर हो रही है, तो तीनों की वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी, बाद में आपका आंसर रहेगा। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.1 एंड 3.2 जो है वो आज के होमवर्क में दो क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चन जो आज के अर्लियर वीडियो में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी सप्लीमेंट्री बुक के एग्जांपल्स 11 एंड 12 जो देखा था, वो बाद में 4 जो हमने अभी इसी वीडियो में सॉल्व किया है, वो जस्ट 6 एंड 2 दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.1 का ए एंड 3.2। तो इतने क्वेश्चन जस्ट यू सॉल्व इट एंड सेंड इट टू टुडेज होमवर्क। इतने क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सेंड करने हैं। इज इट क्लियर? सभी सॉल्यूशन और सभी चीज इसी वीडियो में अवेलेबल है, सो यू कैन ऑल्सो रिवाइंड इट एंड वॉच ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। So thank you very much for being with us. I hope everybody understood this concept, how to convert this decimal numbers into its standard form। डेसिमल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके जो 4 स्टेप्स मैंने आज सिखाए हैं, वो चारों 4 स्टेप्स याद रख लो और उसी टाइप की प्रैक्टिस ज़्यादा करो। So thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.